So I have been posting जी reels for my own fight for my child custody and visitation for some time now. यस और काफ़ी फादर्स जो कि रिलेट कर पा रहे इशू से, दे हैव बिन कमिंग बैक टू मी. उन्होंने मैसेज करा, मेरी काफ़ी कॉल्स हुई हैं, और इंडिया में बहुत है. देन देर हम्म आर फादर्स हु आर इन से फिनलैंड, यूके, कनाडा, यूएस, एंड मल्टीपल लोग हम्म मेरे से डिस्कस कर रहे हैं. दे आर फेसिंग सिमिलर इश्यूज. और हम सब की ये प्रॉब्लम है जो कि वी नॉट गेटिंग क्लैरिटी, and in a way we are losing trust in the courts. Sometimes we get a feeling that the courts are biased, and we know that courts are not biased, so we need some clarity and guidance. And so before we start, I want to thank you that you agreed to come live on this podcast and guide us, and हेल्प अस अंडरस्टैंड क्या क्या इसमें ऑप्शंस हो सकती हैं फादर के पास टू विन द चाइल्ड कस्टडी और विजिटेशन. सो बिफोर वी स्टार्ट मैम, राइट आप बता सकते हैं दो चीज़ें अपने बारे में, कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है लॉ में, और आप किस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. Yes. So I have 12 years of experience as a practicing advocate, and I have been practicing in Delhi for the last 12 years. And I practice in all Delhi trial courts, which includes your Karkarduma, Patiala House, Tisazari, Rohini, Dwarka, Okay. and all the trial courts. And I also look after matters in Delhi High Court. Mm-hmm. So that is my experience, and plus I am running my own law firm Mm-hmm. independently Mm-hmm. with the name of Maan and Singh Law Firm. Okay. And start जब मैंने अपना करियर किया था तो I started under my senior Mr. Bhullar, and I practiced with him for over 5 years. Mm-hmm. And he is the one who gave me the courage and the real confidence, and he was the one who made me realize my worth as a lawyer, that I can handle things independently. एंड इतना लंबा अगर मैं आज की डेट में टिक पाई हूँ तो उन्हीं की वजह से टिक पाई हूँ, बिकॉज ही ब्रॉट दैट अप इन मी. And after that I started my own firm. So basically I started with white collar crimes with him, and I have handled quite sensational matters and quite high profile matters also, like Jain Hawala case, and और भी काफी ऐसे cases हैं high profile. And when I started with my own independent practice, so I think God has his plans. I eventually went into matrimonial forte. Okay. So since I have been practicing independently, I have been specializing in matrimonial laws, which include your domestic violence, matrimonial disputes, be it 498A FIRs, child custody, HMAs, and all the matrimonial disputes. Okay, that's great. That's exactly what we are looking for today. So to start with, हम डायरेक्ट इसी पे आते हैं कि व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट विजिटेशन राइट्स एंड फास्टेस्ट वे टू गेट द कस्टडी राइट्स फॉर ए फादर. आप अगर सिंपल प्रोसेस बता सकते हैं किसी फादर को जो भी स्टार्ट कर रहे हैं. जी. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी फादर्स के लिए या हस्बैंड्स के लिए ये बोलूंगी कि सी इट इज नॉट द लॉ विच इज गिविंग द चाइल्ड टू द मदर ऑटोमेटिकली. सी चाइल्ड बच्चा है, एंड बच्चा जब माँ बाप के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, सो देयर हैज टू बी वन पेरेंट which will have the physical custody of the child. Right? So that is a very practical and a common thing कि दोनों पेरेंट्स अगर डिस्प्यूट में रह रहे हैं एंड वो अलग रह रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चा दोनों के पास एक टाइम पे रहे. बच्चा या तो, बिकॉज देयर आर पेरेंट्स, देयर आर फादर्स हु आर माई क्लाइंट्स एंड हु हैव द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, एंड वो उस टाइम एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि किसके पास बच्चा चला गया. Okay. Right? And secondly, yes, the law says कि जो फर्स्ट गार्डियनशिप जिसको मिलेगी that will be the mother. क्योंकि एक बच्चा 5 साल तक जो है it is of tender age, बच्चा टेंडर एज का है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि मदर की उसको ज्यादा जरूरत है. ये नहीं होता कि फादर की उसको कम नीड है, फादर की भी इक्वली नीड है, बट येस द फर्स्ट नेचुरल गार्डियन कम्स टू बी अ मदर. सो नाउ द फास्टेस्ट वे दैट husbands can approach is if your HMA is pending.
if divorce petition, whether be it from the wife side or be it from your side, if it is pending, तो उसमें आप एक application लगा सकते हैं under section 26, जिसमें आप visitation rights अपने बच्चे के लिए मांग सकते हैं. See, we have to be practical. We can't be कि जी ऐसा लिखा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिखा है ऐसा होना चाहिए. So जो practical rule courts में चल रहा है, I have not seen any court denying visitation rights to any father. And how long does it take before the father is granted visitation? See, I have procured visitation rights for my clients even within 15 days. Wow. क्या होता है कि कई बार आप अभी पिछले साल ही एक केस हमने फाइल किया था इट वाज इन जून. सो जून में कोर्ट्स बंद होते हैं. Right. तो कोर्ट्स जब बंद थे, हमने उस दौरान ही वो सेक्शन 7 and 12 गार्डियनशिप एक्ट का केस फाइल किया था. And in the meantime, till the time the judge called for the reply, it was in Saket courts. तो हमने जब से इतनी प्रेयर कर ली थी कि जनाब we are not on custody today, because see custody is a long driven battle. True, that's right. Custody is not 1 month or 2 months battle. It's a long driven battle. Right. Till that time अगर बच्चा आपके साथ आपसे बहुत सालों से दूर है या बहुत महीनों से दूर है, so उसमें problems आएंगी. First of all, you need to have that one-on-one connection with the child. So how will you create that one-on-one connection with the child? That is, आप उसके साथ regular visitation start करें सबसे पहले. Right? एक बच्चे के साथ आपका bond बनेगा, एक बच्चे के साथ आपका rapport बनेगा. The child will also want to meet you more often. तो जैसे So there are judges I have. 15 days में आपने visitation जी. ग्रांट करा, सो एक फिक्स रूल नहीं है, मतलब हर कोर्ट का अलग अलग होता है. कोई इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या मांग रहे हैं कोर्ट से, क्या प्रैक्टिकल चीज मांग रहे हैं और आप कितना उसको हम बोल सकते हैं शिद्दत से मांग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, सी सबसे पहली बात जो है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है एंड लॉ भी यही कहता है कि जहां पे चाइल्ड कस्टडी की बात आती है या चाइल्ड विजिटेशन की बात आती है, वहां पे पेरेंट्स का नहीं देखा जाएगा कि जी फादर को ये प्रॉब्लम हो रही है या मदर को ये प्रॉब्लम हो रही है, या फादर उसको मिस कर रहा है या मदर उसको मिस कर रही है. ठीक है, वहां पे ये देखा जाएगा कि चाइल्ड के अटमोस्ट वेलफेयर में क्या है. सो दैट इन दिस केस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, बेटी थी 3 साल की, and the mother had taken the child and she had gone to her house and she was not allowing the father to meet. So when we filed for the custody petition, we filed for visitation as interim relief. तो उस केस में इवन बिफोर द जज कुड कॉल फॉर द रिप्लाई फ्रॉम द वाइफ, क्योंकि क्या होता है दूसरी पार्टी ऐसे ही डिले करती है, एक डेट पे वकालतनामा फाइल कर देंगे जी, फिर टाइम ले लेंगे रिप्लाई फाइल करने का, फिर अगली डेट पे बोलेंगे XYZ रीजन हो गया तो हम रिप्लाई नहीं फाइल कर सकते, एक और डेट दे दीजिए. सो इन द मीन टाइम हमने ये बोला कि जी इन द मीन टाइम एटलीस्ट हमको बच्चे से हफ्ते में 1 दिन मिलने तो दीजिए. तो कोर्ट ये समझते हैं कि अगर एक पार्टी चाहे वो हस्बैंड साइड हो या वाइफ साइड डिले कर रहे हैं तो कोर्ट समझते हैं बात, राइट? समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं. फैमिली कोर्ट के जजेस बिल्कुल समझते हैं, कोई जाके होगा जो नहीं समझेगा. बट एज आई एम कंसर्न्ड और मैंने अभी तक जितने केसेस देखे हैं कोर्ट्स ने समझा है. सो उसमें कोर्ट ने वीकली बच्चे को 2 घंटे 3 घंटे के लिए विजिटेशन ग्रांट की थी साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में. So the father till the could meet the child every weekend. फिर हमने जब 2-3 मीटिंग्स हो गई and the meetings went well, the child really enjoyed. फिर हमने एक और एप्लीकेशन लगाई कि जी अब इसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी मिलने दिया जाए. So the court allowed that also. तो ये जो मीटिंग चाइल्ड ये घर पे नहीं थी, बाहर मॉल पे या किसी बाहर जगह पे होती है मीटिंग? नहीं, जरूरी नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स कि सी ऑलरेडी क्या होता है ना, हस्बैंड एंड वाइफ ऑलरेडी लड़ रहे हैं. अगर आप पहले इस केस में भी पहली जो मीटिंग फिक्स हुई थी वो फिक्स हुई थी लेडी के घर पे. बट जब फादर लेडी के घर पे जा रहा था तो वहां पे जिस कमरे में उन्होंने उसको मिलने के लिए परमिट किया वो कमरे का वॉशरूम लॉक कर दिया था. ही कुड नॉट यूज द वॉशरूम. और उस कमरे में CCTV कैमरा लगा लिए थे. सो फादर मीटिंग हिज ओन डॉटर अंडर सर्वेलेंस
एंड यू नो बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ही वाज फेसिंग, कि वो बाहर निकल रहा था तो एक बॉडीगार्ड खड़ा है, वो बच्चे को लेके नहीं कहीं जा रहा, उसको बच्चे से बात नहीं करने दी जा रही, बार बार वो केयर टेकर आ रही है बच्चे की कमरे में, यू नो किसी ना किसी रीजन की वजह से। सो फिर हमने कोर्ट में बोला कि जी ये ग्रांट तो आपने कर दिया बट ये चल नहीं रहा बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड ऑल दीज रीजंस। उसके बाद कोर्ट ने एक न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया विच वाज अ पब्लिक वेन्यू, जहां पे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वहां पे भी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि जो लेडी थी वो फिर अपने भाई बहन को ले आई, तो अगली डेट पे हस्बैंड की भाई बहन के साथ लड़ाई होगी, उन्होंने कुछ कमेंट पास कर दिया। सो देन अगेन वी अप्रोच द कोर्ट, फिर हार के कोर्ट ने जो है जो चिल्ड्रन रूम होता है कोर्ट के अंदर ही, वहां पे विजिटेशन करी। सो यू नो इट इज ऑलवेज बेटर। फादर के घर पे क्यों नहीं देते? कि बॉन्डिंग देखता है कोर्ट पहले की बॉन्डिंग है? फादर के घर पे भी देते हैं। अगेन देखिए, जब आप लेडी के घर पे जा रहे हैं, आप हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं, राइट? सो व्हेन द लेडी विल कम टू योर हाउस, शी विल आल्सो, वेदर शी इज फेसिंग और वेदर शी इज नॉट फेसिंग, शी विल आल्सो गो टू द कोर्ट एंड से जी मैं हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फेस कर रही हूँ। तो अगर लेडी ना आए so, वो जो आपका थर्ड पार्टी कैन कम, ऐसा हो सकता है? नहीं, गार्डियन के, बच्चा छोटा है तो गार्डियन के साथ ही आएगा ना, नेचुरल गार्डियन के साथ ही आएगा। द लेडी विल नॉट अलाउ दैट, इवन द कोर्ट्स विल नॉट अलाउ। सो इट्स ऑलवेज बेटर, यू नो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव यू नो अ न्यूट्रल वेन्यू। आपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, यू नो मेन मोटिव क्या होना चाहिए? बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चे के साथ मिलना जुलना, उसको यू नो फील करवाना कि यस यू हैव अ फादर, एंड आपने अपना बॉन्ड बनाना है बच्चे के साथ। सो दैट बच्चे को अगर कोर्ट भी पूछे ना कि अगर आप पापा के पास जाना चाहते हो, तो बच्चा खुद बोले जी हाँ मैं जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आज की डेट में बहुत से मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे मदर आके बहुत कन्वीनियंटली बोल देती है कि जी बच्चा तो मिलना ही नहीं चाहता इनसे। तो कोर्ट बच्चे से पूछता है? मेरे पास एक और केस, 5 साल से छोटा बच्चा होता है, कोर्ट बात करता है, बुलाते हैं, कैसे होता है? नहीं, बहुत छोटे बच्चे को तो नहीं, बट हाँ अगर बच्चा इज सेंसिबल इनफ, मेच्योर इनफ, जैसे 7-8 साल का है, अभी मेरे एक केस में एक बच्चा 13 साल का है, वो फादर के पास है, तो उसमें मदर ने कस्टडी की पिटिशन फाइल करी है और हमने भी कस्टडी की पिटिशन फाइल करी है टू गेट द लीगल कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज मदर उसको 1.5 साल पहले छोड़ के चली गई थी एंड देन शी वाज हैविंग। बच्चा डिसाइड करता है कि मेरे को फादर क्या रहना है या मदर के साथ? किस एज में? ऐसा कुछ क्राइटेरिया है लॉ में? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बच्चा डिसाइड करता है, बट जैसे इस केस में जैसे मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कुछ केसेस में क्या हुआ, लड़ाई हुई हस्बैंड एंड वाइफ की, वाइफ ने बच्चे को लिया और वाइफ चली गई। उस केस में कई बार जैसे हस्बैंड को लगेगा कि जी 1-2 दिन की लड़ाई है, ये वापस आ जाएगी, बट वो वापस नहीं आती, तो बच्चा ऑटोमेटिकली वाइफ की कस्टडी में चला गया, राइट? एंड जैसे मेरे इस केस, एक और केस में है कि बच्चा 13 साल का है, वो हस्बैंड के पास है, फादर के पास है, टेक्निकली वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास है, क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो बहुत परेशान करती थी, तो फादर ने खुद ही उसको ग्रैंडफादर के पास रख दिया था। एंड वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो वो जी वहां से चली गई 1.5 साल तक, उसने कोई बच्चे की खैर खबर नहीं पूछी। अब जब उसका वो मैरिटल अफेयर भी खराब हो गया, तो नाउ शी वांट्स द किड बैक and she used to hit the child and everything. So we have the CCTV footages and everything that we've put in court. She is not safe with you know the son is not safe with the mother. So उस केस में डीवी उन्होंने अब क्या किया है कि एक तो गार्डियनशिप की पिटिशन फाइल करी है और एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस में ही इंटरिम रिलीफ मांगा है कि बच्चे को विजिटेशन राइट हमें दिया जाए बच्चे का। तो उस केस में जज ने पिछली डेट पे ऑर्डर किया है कि द चाइल्ड शुड बी ब्रॉट टू द कोर्ट। So since he is 13 years of age, so the court will now ask him कि whether he wants to meet the mother or not. Okay. So जहाँ भी बच्चे बहुत छोटे हैं वहाँ पे जजेस भी इस व्यू के होते हैं। I have literally myself seen the judges saying कि जी बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा वही सीखेगा जो आप सिखाओगे। अगर आप उसको बताओगे ये तुम्हारा पापा है, तुमने इसको मिलना है, तो बच्चा वही करेगा, है ना? क्योंकि छोटे बच्चे को यू कैन नॉट, उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं है। लाइक 13 साल के बच्चे की तो मर्जी है कि मेरे को पापा के पास नहीं जाना, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, बट एक 3-4 साल 2 साल के बच्चे की क्या मर्जी है? ही डजंट नो ऑल दिस। सो वंस द जज अग्रीज कि चलो विजिटेशन देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट विजिटेशन फर्स्ट। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिटेशन? कैसे होता है? वीकली, डेली, मंथली? No. So the frequency is how comfortable is the child with you. Right, and the judges have to see, the courts have to see everything. बच्चे का रूटीन, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसकी छुट्टी कब होती है, अगर बच्चा कितना छोटा है,
तो मोस्टली दे ग्रांट वंस वीकली, डिपेंडिंग कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसकी संडे को छुट्टी है तो वो संडे को मिल लेगा, अगर बच्चा बहुत छोटा है, मतलब कि डिपेंड करेगा कि बच्चे की रूटीन क्या है। रूटीन खराब में, एज आई अर्लियर मेंशन्ड कि द कोर्ट्स do not see what is the comfort of the father or the mother. The courts see how comfortable is the child. And yes, courts have allowed video calls twice weekly, thrice weekly, you know, कई कुछ केसेस में रोज आधा घंटा 15 मिनट तो कोर्ट्स अलाउ करते हैं। So एक चीज है, मेरे फादर ने करेक्ट करा, उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल और विजिटेशन भी था बट वाइफ इज नॉट रिस्पेक्टिंग दैट, और पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही है। सो इस केस में क्या कर सकते हो? Then the next step is you file for contempt in the court. Contempt against the wife. So that is what I'm saying कि हमें rather than going public, we have to, because see already हमारे देश में जो है आदमियों के लिए कानून बहुत कम है, बहुत कम क्या, ना मात्र है, ठीक है। तो अब हमें ऐसा नहीं है कि अगर वाइफ झूठा केस फाइल करती जा रही है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। अभी मैंने 4 दिन पहले ही एक डीवी ट्रायल में स्टे लिया है। सो उस केस में भी 2011 में शादी हुई थी उन दोनों की, 2012 में उनके ट्विंस हुए थे, एंड 2014 में हस्बैंड को पता चलता है कि वाइफ इज ऑलरेडी इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद हिज ओन रिलेटिव, विद हिज सिस्टर्स हस्बैंड। सो व्हेन ही गेट्स टू नो, वो उनके फादर को क्वेश्चन करता है, एंड जब लेडी को पता चलता है कि अब मेरी पोल खुल गई है तो वो भाग जाती है घर से बच्चे छोड़ के। सो व्हाट हैपेंड कि हस्बैंड मिसिंग कंप्लेंट फाइल करता है, एंड वो मिलती तो नहीं है तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एन एफआईआर। आफ्टर 2 months द पुलिस कॉल्स द हस्बैंड एंड सेज कि जी आपकी वाइफ की हमें टिप मिली है एंड शी इज इन आगरा, सो आप हमारे साथ चलिए। तो ये जब जाते हैं उनके साथ, वहां पे पता चलता है कि शी इज ऑलरेडी लिविंग विद अनदर मैन, एंड दैट मैन इज सम थर्ड मैन। सो व्हेन द पुलिस डज द इन्वेस्टिगेशन, तो वहां पे उनसे एक मैरिज एफिडेविट बरामद होता है। सो वो वाइफ वापस आती है, वो किडनैपिंग का केस चलता है वहां पे, एंड आफ्टर पीरियड ऑफ 5 years शी फाइल्स 498 FIR प्लस डोमेस्टिक वायलेंस केस। 498 FIR तो हाई कोर्ट ने कर दी स्टे, एंड बट जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था उसमें जज साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया। तो वो अब मैंने जो है उसको अपील फाइल करके सेशंस कोर्ट से उसको स्टे करवाया है, क्योंकि हमने जज साहब को दिखाया कि जी ये सब कहानी है। सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल ऑल द हस्बैंड्स, ऑल द मेल्स हु आर फेसिंग सच थिंग्स, कि आप, क्योंकि सी हमारा जो है वुमेन सेंट्रिक लॉ है, एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट, राइट। सो ऑब्वियसली जो वुमेन सेंट्रिक लॉ है तो पहला वुमेन को सुना जाता है ना। तो वहां जहां वुमेन को सुना जाता है तो ऑब्वियसली उनकी कंप्लेंट्स भी फाइल होती हैं, कुछ उसमें जेन्युइन केसेस भी होते हैं, कुछ उसमें नॉन जेन्युइन केसेस भी होते हैं, जस्ट टू सेटल द स्कोर्स। सो जहां पे स्कोर सेटल करने की बात आती है वहां पे हमें बहुत पैनिक नहीं करना होता, हमें आराम से जस्ट कलेक्ट योर एविडेंसेस। We have to be patient enough. What I tell all my clients who come to me, that you have to be patient. I understand, बहुत anxiety होती है कि मैं सही हूँ, मेरे को कोई सुन नहीं रहा, मैं सही हूँ, मेरे अगेंस्ट ऑर्डर आ रहा है, मैं सही हूँ, ये हो रहा है, मैं सही हूँ, वो हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। कोर्ट सुनते हैं, कोर्ट समझते हैं, उनको पता, आज की डेट में हर कोर्ट को पता है कि क्या जेन्युइन है, क्या नॉन जेन्युइन है। अब आप देखेंगे कुछ केसेस में मेंटेनेंस पहले दिन में बंद जाती है, क्यों? कोर्ट को पता चल जाता है कि ये जेन्युइन है, इस लेडी को जेन्युइन नीड है। और कुछ केसेस में सालों साल मेंटेनेंस नहीं बनती, मेरे पास ऐसे केसेस हैं 1.5-2 साल हो गए मेंटेनेंस नहीं बन रही। मैम चाइल्ड विजिटेशन उसमें कोर्ट खुद बोल देता है कि देयर इज नो नीड। कोर्ट कह रहे स्लो है, सो इफ द कोर्ट्स एंड सिस्टम्स आर टू स्लो, हाउ कैन अ फादर स्टे मोटिवेटेड एंड नॉट गिव अप एंड कीप फाइटिंग? तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि इट्स नॉट, वी कांट से कोर्ट सिस्टम इज स्लो। अभी इस पॉडकास्ट के पहले एक पढ़ रही थी न्यूज, तो उसमें था कि अभी हम 3रे महीने में हैं। सो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन दिल्ली 500 केसेस ऑफ डिवोर्स हैव ऑलरेडी बीन फाइल्ड, एंड वी से वी आर इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ 2026. So you see, there is one judge in one court, and he has hundreds and thousands of cases. Solution क्या है? So what we can increase the number of judges, क्योंकि जज के लिए भी it's not humanly possible to
study all the Exactly. cases, give So verdict. वो होना चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए, फैमिली कोर्ट्स इंक्रीज होने चाहिए. अब जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 फैमिली कोर्ट है, वहां पे और ज्यादा होने चाहिए. Right. राइट, बट वो होते होते वो टाइम लगेगा. सो व्हाट आई विल से कि जब भी हम कस्टडी की बात करते हैं, तो रादर देन जंपिंग ऑन टू फाइनल कस्टडी, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें हमारे बच्चे से मिलने दिया जाए, बी इट वीडियो कॉल, बी इट फोन कॉल, एंड बी इट फिजिकल मीटिंग. वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स. एक बार जब ये हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जजेस जब देखेंगे कि बच्चा तो भैया बहुत कंफर्टेबल है फादर के साथ, तो जजेस भी वो व्यू रखते हैं. सो इन दैट केस आपको इंस्टेड दैट फाइट शुड नॉट बी बिटवीन यू एंड योर वाइफ. क्योंकि मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पे हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है कि जी मैं 4 बजे फोन करूंगा, वाइफ कह रही है नहीं जी मैं 4 बजे फोन नहीं कर सकती, मेरे पास लैपटॉप नहीं है. हस्बैंड बोल रहा है जी मैं तो लैपटॉप पे ही फोन करूंगा, वाइफ कह रही है मैं फोन पे फोन करूंगी. सो उस केस में क्या आप अपनी ईगो सेटल कर रहे हो, आप ईगो सेटल कर रहे हो, आप बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं हो. आप बच्चे की विजिटेशन सिर्फ इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि आपको वाइफ को तंग करना है. सो दैट शुड नॉट बी द केस. I have cases where I have seen the daughter calling the father uncle court में, and the father had tears in his eyes. So that is also one thing. क्यों मिलना छोड़ दिया बच्चे से, क्यों बच्चे की विजिटेशन मांगनी छोड़ दी? क्योंकि जब भी वो बच्चे को मिलने जाता था, बीवी कलेश कर देती थी. तो वो कलेश से बचने के लिए और वो बच्चे पे बुरा असर ना पड़े, उससे बचने के लिए the husband stopped seeking visitation, and now the girl is 8 years and she calls him uncle. और how So, do courts decide every for a father कि इसको visitation मिलना चाहिए या custody मिलना चाहिए कि नहीं? So कुछ do's and don'ts हैं father के लिए? See, it is not only about father, it is about, as I said, both the parents. Why? Because the court will see कि बच्चा ज्यादा safe, be it emotionally, be it financially, be it mentally, be it morally, be it any kind of thing, कि बच्चे को ज्यादा बढ़िया upbringing कौन दे सकता है. कुछ केसेस में अगर मदर फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है, बट शी प्रूव्स टू द कोर्ट दैट शी कैन गिव अ बेटर अपब्रिंगिंग देन अ फादर. सो उस केसेस में फादर को डायरेक्शंस दी जाती है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट करे एंड मदर उसको अपब्रिंगिंग देगी. कुछ केसेस में जहां पे अब जैसे मैं अभी केस की बात करती अडल्ट्री की, तो वहां पे तो कोर्ट भी नहीं ग्रांट करेगा ना बच्चे की कस्टडी मदर को, वो फादर के पास ही रहेगी. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन केस टू केस. दैट इज व्हाई आई सेड कि अपना केस खुद हम ना बिगाड़ें. बिकॉज सी अभी हमें नया ईगो है, नया हमें एग्रेशन है, नया जज्बा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया. बट आई अंडरस्टैंड दैट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. Because at times being a lawyer who fights on behalf of men, it gets frustrating for me as well. कि जी कोर्ट को ये दिख नहीं रहा, मैं इतना इनको दिखा रही हूँ, इनको दिख नहीं रहा कि the husband is at the losing end. So that is there, but then we have to be patient. Again, a connected question: how can a father maintain the balance of being respectful in court while still fighting strongly for their rights, timely getting the visitation? The key to that is patience. We have to train ourselves mentally. Right? See, सच चाहे जितना मर्जी दबा लो, जितना मर्जी सच को पीछे कर दो, बट सच एक ना एक दिन सामने आता ही है. एंड दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन माय केसेस. I have a case of a very dignified person, and when the client came to me, there were 5 cases running between the clients, both the husband and the wife. So we took it to 11 in number. So when we took 11 in number, and I just told my client one thing, that what you need is patience. The wife was demanding 10 CRs in the beginning, and then she came down to 5 CR and everything. So पेशेंस इज द की टू सक्सेस. एंड उस केस में हमने क्या किया, जो FIR का केस था, नॉर्मली लोग फटाफट क्वॉशिंग फाइल कर देते हैं, बट आई सजेस्ट कि क्वॉशिंग फाइल करने से बेटर है फर्स्ट आप अपनी जो रेमेडी है मजिस्ट्रेट के सामने एग्जॉस्ट करो ऑन आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज. जब आप वहां पे, बिकॉज आई हैव गॉट डिस्चार्ज फॉर द क्लाइंट्स,
एंड एट द टाइम ऑफ चार्ज, तो जहाँ पे एफआईआर खत्म हो गई तो डीवी केस उनको ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि डीवी केस एंड एफआईआर आर ऑन द सेम लाइंस, राइट? सो हाफ द बैटल व्हेन यू हैव वन, तो आप एक ऊपर पेडेस्टल पे आ जाते हैं। सो नाउ द हस्बैंड व्हेन ही हैज वन केसेस एंड उनकी मेंटेनेंस भी रिड्यूस हो गई है, बिकॉज जज ने पहले बहुत हाई मेंटेनेंस ग्रांट कर दी थी, उसको भी हमें रिड्यूस करवाने में, मॉडिफाई करवाने में लगा। सैलरी होता है, हाई क्या होता है और लो क्या होता है, ऐसा कुछ है? सी देयर इज नो परसेंटेज, नो, ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर इनकम, व्हाट इज द वाइफ्स इनकम, हाउ मेनी डिपेंडेंट्स यू आर। सो वो जज की जो भी कैलकुलेशन है वो कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि जैसे आर्मी वालों में होता है ना 25 और 35% ऑफ द सैलरी डायरेक्टली टू द वाइफ। सो ऐसा कोई स्ट्रेट फॉर्म जैकेट वो नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन say X% of the total salary if wife is not working. तो सी नो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे एक और केस में द वाइफ इज ओनली गेटिंग, आई एम फ्रॉम द हस्बैंड साइड, so the wife is only getting 4,000 per month. And in that case the wife is not working, she is not working, and वो बच्चे के लिए मिल रहा है सिर्फ 4,000 रुपए महीना। और मेरे एक और केस में 70,000 मेंटेनेंस भी मिल रही है। केस अभी चल रहा है, सो वो केस अभी चल रहा है, उसी में हमने मेंटेनेंस रिड्यूस करवाई है, तो अभी दूसरी पार्टी उसको चैलेंज कर रही है। तो ऐसा भी होता है, वाइफ वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, दोनों अच्छा कमा रहे हैं 19-20, बट वाइफ नौकरी छोड़ दे, फिर कोर्ट का क्या ओपिनियन होता है जस्ट बिफोर द केस? सी आजकल जो है, सी इफ अ चाइल्ड इज इन्वॉल्व्ड then yes the courts will grant maintenance. Okay. If the child is involved. For the child. If there is no child, if there is no child, then in that case क्या होता है कि आजकल कोर्ट्स भी ये प्रमोट कर रहे हैं कि द वाइफ शुड नॉट स्टे आइडल, मेंटेनेंस शुड नॉट पुश द वाइफ टू स्टे आइडल एंड जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड फॉर मेंटेनेंस। या क्वालिफिकेशन देखी जाती है, कोर्ट वो उसके ऊपर ओपिनियन बनाता है? देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है। और मैं उन्हीं केसेस की भी बात कर रही थी जहां पे अभी मेरे पास एक कानपुर से है हस्बैंड, तो पिछले 2022 में उनका केस फाइल हुआ था, तो आज तक उसमें कोर्ट को ऐसा नहीं लगा है कि वाइफ को मेंटेनेंस ग्रांट होनी चाहिए। तो वाइफ वो हर बार कोर्ट में आके यही चीखती है कि जी मैं काम नहीं करती। सो व्हेन द कोर्ट आस्क्ड कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, शी सेज आई एम एमबीए। सो देन द कोर्ट आस्क्ड कि व्हाई आर यू नॉट वर्किंग, सो शी गिव्स अ वेरी सिली आंसर इज दैट कि जी कोविड के बाद मुझे नौकरी नहीं मिल रही। तो उस केस में कोर्ट भी, हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि आफ्टर कोविड एवरीबडी हैज स्टार्टेड वर्किंग, राइट? कोविड केम फॉर अस एज लॉयर्स, कोविड केम फॉर जजेस, कोविड केम फॉर एवरीबडी, सो एवरीबडी इज बैक on their feet, so why can't she earn? So courts do understand, courts are very smart, they do understand कहाँ पे requirement है, कहाँ नहीं है। बट हाँ, जहाँ पे एक बच्चा इन्वॉल्व है वहाँ पे कोर्ट्स थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। सो एक मैं अपना ही केस लेता हूँ कि मेरी वाइफ ने कोई मेरे ऊपर केस फाइल नहीं करा, ना ही कोर्ट में, ना ही पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, कोई चाइल्ड अब्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने केस फाइल करा है और उसमें 10 पॉइंटर्स हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं फॉर सम रीजंस, और वो जेन्युइन रीजंस हैं मेरे हिसाब से। द कोर्ट कैन डिसाइड ऑन द फैक्ट्स। द पॉइंट इज व्हाई कांट आई सी माई चाइल्ड? इट्स बीन मोर देन 6 months और कोर्ट को टाइम चाहिए, तो क्या ये ठीक है या क्या करना चाहिए इसके ऊपर? क्योंकि वाइफ ने तो कुछ बोला नहीं है। अगर मैंने विजिटेशन एप्लीकेशन भी फाइल करी, अब कोर्ट रिप्लाई मांग रहा है, तो ऑब्वियसली वाइफ विल राइट 10 things अगेंस्ट मी, चाहे उसका एविडेंस नहीं है। तो दिस इज़ अनफेयर, माई चाइल्ड विल स्टार्ट कॉलिंग मी अंकल, जैसे आपने कहा टाइम निकलता रहेगा। तो क्या इसमें रास्ता होना चाहिए मेरे लिए? इसमें से एक आपका ये रास्ता होना चाहिए कि एक इंटरिम की एप्लीकेशन हम फाइल करनी चाहिए आपको, जिसमें यू हैव टू गिव जज सर्टेन ऑप्शंस कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए आज की डेट में हानिकारक हूँ, तो ठीक है, आप मुझे फिजिकल विजिटेशन ना दीजिए, आप मुझे कम से कम वीडियो कॉल्स तो अलाउ कीजिए। ठीक है, सो आवर स्ट्रैटेजी हैज टू बी दैट वेज। सो वंस वी गेन द ट्रस्ट ऑफ द कोर्ट, वंस वी गेन द ट्रस्ट ऑफ द जज, देन things become easy, things become smooth for us.
So we can, in the beginning we have to be like, I have to meet my child. No matter, Judge Saab, you call the child in the children room, in the court. I don't have any issues. She can accompany the child. Anybody can accompany the child. I can be in surveillance. We have to show that willingness to the court. That we are more than anything, I just want to meet my child. My clashes with my wife are separate. Got it. Those clashes I will deal somewhere else. In HMA petition, I will not deal it with here. But we have to tell the judge that what impact. आपके बच्चे की एज क्या है? 3.5 years. 3.5. So we have, if the mother is saying कि नहीं जी ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो हमें जज को ये समझाना है कि एक 3.5 साल के बच्चा, उसको अभी कोई समझ नहीं अच्छे बुरे की, उसको हम जैसा सिखाएंगे वो वैसे बोलेगा. अगर अभी उसको तुम ये भी बोलोगे ना पापा से बात नहीं करनी, पापा से, वो फिर भी अगर उसको करनी होगी ना पापा से बात, वो बोलेगा नहीं मुझे तो करनी है. That all depends on the attachment. So we have to show to the judge that we are harmless to the child. We are harmless. I am his father. What harm am I going to provide? But at least, give me anything. Give me physical visitation. Give me video call. Give me anything. At least give me something to start with. So जब आपको लगेगा, for a judge to decide on this, in addition to facts and evidence, क्या वो परसेप्शन भी एक इम्पोर्टेंट है क्या, कि फादर की क्या इमेज बनी है, मदर की क्या इमेज है, तो परसेप्शन पे भी जज ऑर्डर देते हैं. Exactly. Why? Because as I said, family court में जो चीजें होती हैं वो exactly strictly as per law नहीं होती. ऐसा नहीं होता कि आप कोर्ट में जाके चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, और you are saying XYZ things to the other party, you are saying XY things to the court, and then you are saying no I am a very good father, मुझे विजिटेशन मिलनी चाहिए. तो जजेस के माइंड में परसेप्शन आती है कि अगर मेरे सामने ऐसा बिहेव कर रहा है ये इंसान, तो ये बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहा होगा. No wonders you may be very excellent with your child, but that perception goes into the mind of the judge. So you have to be a civilian, you have to behave very properly. That is why I said कि we should not create problems for ourselves कि जी वाइफ कोर्ट में जाके दिखा दे कि ये देखिए जी ये अपने बच्चे की विजिटेशन चाहते हैं, ये देखिए ये घर पे आते हैं तो ये हंगामा करते हैं. Which is not well for the welfare of the child. ये जी हमारे बच्चे ने देखा, बच्चा तब से सहम गया है. बोलने को हम कुछ भी बोल सकते हैं कोर्ट में, तो जज के दिमाग में सिर्फ वो जो वीडियो आपकी दिखा दी, अब जैसे एक मेरे केस में यही था कि जब वो जो हस्बैंड है उसके घर पे जाता था मिलने, तो वो बाउंसर्स खड़े होते थे बड़े बड़े, तो उसने क्या किया, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके वही हमने कोर्ट में दिखा दी. तो जज के दिमाग में यही चला गया कि एक 3 साल की लड़की के लिए आपने इतने बड़े बड़े बाउंसर रखे हैं. तो हमने कोर्ट में ये आर्ग्यू किया था कि आप उसके नेचुरल फादर को उसके पास नहीं जाने दे रहे, लेकिन एक अननोन इतना बड़ा सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर मेरी बच्ची के इर्द गिर्द 24 घंटा रह रहा है. So what environment are you talking about? So all these things matters because ये कहीं लॉ में नहीं लिखा. ये सब आपके बिहेवियर से, आपके कंडक्ट से बहुत जरूरी होता है. ये आपके कंडक्ट से, क्योंकि आज भी जैसे मैं जहाँ पे होके आई हूँ तो वहां पे भी एक बड़ी अच्छी चीज एक जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने बोली, उन्होंने ये बोला कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं जज की, वो वकील के और पार्टी के कंडक्ट को देख के डिस्क्रिशनरी ऑर्डर्स ग्रांट करते हैं. सो ये सारे डिस्क्रिशनरी ऑर्डर्स हैं, क्योंकि कस्टडी तो पूरा ट्रायल चलेगा फिर डिसाइड होगी किसको मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी. बट जो ये बीच के इंटरिम रिलीफ्स हैं, दीज आर ऑल डिस्क्रिशनरी. और किसी स्पेशल कंडीशन का भी ध्यान रखना चाहिए फादर को जब ऑर्डर आ रहा हो विजिटेशन का, या स्पेशल कंडीशन यही है कि अपनी तरफ से आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें. विजिटेशन ऐसा कुछ है या नहीं? कैसे कौन सी विजिटेशन? कोर्ट ऑर्डर पास कर रहे हैं विजिटेशन का, तो फादर को ध्यान रखना चाहिए कि ये क्राइटेरिया इज अनएक्सेप्टेबल टू मी, या ये क्राइटेरिया होना चाहिए व्हाइल टेकिंग द विजिटेशन. See, exactly. See, whenever the visitation is discussed in court, तो वो दोनों पार्टीज को पूछ के या दोनों पार्टीज को सुन के की जाती है. तो अगर वहां पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जज 1 बजे का टाइम फिक्स कर रहा है और 1 बजे का टाइम आपको सूट नहीं कर रहा, और 3 साल का बच्चा है वो तो प्ले स्कूल में ही जाता होगा, 9 से 12 का सुबह का टाइम होगा, राइट? तो यू कैन ऑलवेज टेल योर कंफर्ट लेवल ऑल्सो. ऐसा नहीं कि आपको नहीं सुना जाएगा. तो वो सब चीजें जो हैं मीडिएशन एंड वो सब चीजें बार्गेन हो जाती हैं. ऐसा नहीं है कि यू नॉट बीइंग पनिश्ड. वी आर नॉट गोइंग एंड आस्किंग कि विजिटेशन देके हमें पनिश कर दो.
राइट. सो इन वन अगेन एक और केस था जिसमें द फादर वाज इन लंदन, ही यूज्ड टू वर्क देयर. सो उन्होंने उस हिसाब से विजिटेशन ली थी. आई वाज ऑन द वाइफ साइड कि व्हेनेवर ही इज कमिंग टू इंडिया he will in advance intimate the mother that मेरा ये स्टे है, मेरे पास ये छुट्टियां हैं, तो बच्चे का शेड्यूल ये है. तो उसमें कोर्ट ने सब प्लान करके उसमें पूरा एक डिटेल्ड ऑर्डर आता है कि कैसे होगी विजिटेशन. अगर उस विजिटेशन को कोई फ्लाउट करता है देन द अदर पार्टी कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल फॉर कंटेम्प्ट. बट हाँ, मैं हस्बैंड्स को ये जरूर एक एडवाइस करूंगी कि जितना हो सके हम इग्नोर करें. अगर विजिटेशन हम कर रहे हैं तो जहां तक हो सकता है वहां तक हम इग्नोर करें चीजों को, बिकॉज दी अदर पार्टी विल ऑलवेज ट्राई एंड पिंग यू कि आप कुछ ऐसा करो सो दैट वो कोर्ट में जाके बोलें जी आपने तो इनको विजिटेशन दी थी, he has flouted this visitation, so now visitation should get cancelled. Understood. सो हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम सिर्फ विजिटेशन को विजिटेशन तक ही रहने दें. एंड हम जितना उसको जो भी आपने पिन पॉइंट करना है कोर्ट में जाके पिन पॉइंट कर दीजिए कि जी हम गए थे पिछली बार विजिटेशन पे, ये हुआ था, हम चुपचाप वहां से आ गए एंड दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड, सो यू नो वी आर नॉट कंफर्टेबल. सो लेट द कोर्ट डिसाइड फॉर यू. Yes. To summarize, court decides on facts, evidence, and also behavior of both the parents. Of course, of course. And whenever there is a dispute between husband and wife, nothing should be on call. Everything should be documented on messages or emails, so that you can go and show it. Got it. ठीक है मैम. Thank you so much. This was definitely helpful. और इससे बिल्कुल मुझे और मेरे जैसे और फादर्स जो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है चाइल्ड कस्टडी या विजिटेशन में, एक रास्ता मिला है, गाइडेंस मिली है. और इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज होंगी अगर मेरे तक आती है तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, सो दैट वी कैन गेट दिस सॉल्यूशन. थैंक यू सो मच. Yes, of course. My pleasure. Thank you. Nice to meet you.